Good afternoon, everyone. I, on behalf of EPCH, welcome you all to the 8th session of Exporters Clinic, wherein time and again we pick one topic which is relevant for international trade, specific to handicraft sector, and we deliberate on it. We invite a guest faculty who throws light on the subject, shares his knowledge, and then we end with Q&A session. Today's topic is DGFT relief measures for exporters through ECGC. As you all know, Office of DGFT has announced a scheme called Relief, which is Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation. There are various components in the scheme. The degree of benefit is also indicated. The countries are also specified, and the timeline within which the benefit is to be given is also indicated. To talk you through the entire scheme and any other topic which pertains to ECGC, today we have with us Mr. Amit Kumar. He is AGM posted in the Northern Region Office, Delhi. He has a postgraduate diploma of finance from Symbiosis, Pune, advanced program on strategic leadership course from IIM Kolkata, and he has almost 20 years of experience with ECGC now. Welcome, Mr. Kumar. Thank you, sir. Thank you very much. So over to you now. You can make your presentation and then probably call it for question answer session. Thank you. Thank you, sir. Let me first of all share my presentation. Yeah, I think my presentation is visible. Okay. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, Rajesh sir and all the esteemed members of EPCH. And it's a very good moment for ECGC that you have invited us to discuss about this relief package and all. Because as you have already said that the government has come up with this scheme, and ECGC is the nodal authority to implement this relief. So we are more than happy that if we are able to deliver what the government has expected from us, and whatever the fund that has been allocated to ECGC, we are trying our level best to educate and to inform all exporters. Wherever there is a possibility, you should definitely come and take claim with us. So that is the main objective, because the government wants to pay, want to compensate whatever the losses the exporter has suffered. So that is the main intention. And see, this topic is limited to a certain extent. After this topic, we can discuss in general also. But this topic, the relief, we have to be very clear in mind that which exporter is applicable under this scheme. So first of all, if I assume that exporter is not a ECGC policy holder, he has not taken ECGC policy, in such case, he is applicable only for the component 3. So that is the first part. मुझे एक रिक्वेस्ट है, आपके पास कोई और सिस्टम तो नहीं खुला है? आपकी आवाज इको कर रही है, लोगों का चैट में आ रहा है कि आपकी आवाज काफी इको कर रही है। रूम बंद करके आपका थोड़ा सा स्पेस कर दीजिए, नहीं तो उसमें मैं दोबारा एक मिनट, अभी इको टेस्टिंग अभी भी आ रही है इको? सर हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ ऑडियंस है वो चैट में डाला था कि आपकी आवाज इको हो रही है। व्हाट टू डू? एक बार वापस एग्जिट करके एंट्री करूं या हाउ टू गो? आप स्टार्ट रखिए सर।
Okay. So, this package is, yeah, we have discussed about this package, the component 3. तो हम जो बात कर रहे थे 1 and 2 and 3, तो जो थर्ड कंपोनेंट है, ये मैक्सिमम एलोकेशन इसी थर्ड कंपोनेंट में है. दिस कंपोनेंट सर्व्स those exporter who are not a ECGC policy holder. Under this, maximum amount is allocated, and our intention, our entire effort is that all exporters should take benefit from the component 3, because that is earmarked by the government. Now, who are eligible, who are not eligible, and which type of cost we are compensating it. So that is the point that we have to discuss. Number 1 and number 2 is applicable only for the ECGC policy holder. The number 1, those who are already having, and number 2, those who have taken ECGC policy just now. Okay, so these are the 3. We will just discuss it in the next slide. Now we have to be very clear about it, that what are we are providing cover. So under this scheme, we are covering only a limited thing. So limited things means the first condition is that your shipped on board date, bill of lading date, that must be between 14 February to 15 March. So if your shipped on board date or bill of lading date is falling between 14 February to 15 March, then only you are eligible. This is the first point. Now the second point is that your destination country or the in transit country should be these 10, which is mentioned in the slide. UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Iraq, Iran, Israel, and Yemen. There are 2 more countries which has been added just now by the DGFT, that is Jordan and Egypt. So you can add 2 more countries in this list. So now it's become a 12 country list. So if your destination is these 12 countries, including Egypt and Jordan, or if it is in transit, then you are eligible for this. Container, yes, it is applicable to all containers, full container, less than containers. So that doesn't matter. So bill of lading date and the destination or in transit country should be limited to these country only. Now, what is the coverage and what is not covered? See, the first one, it is written cover up to 100% of loss. This is applicable only under the component 1 who is enjoying a ECGC policy from the beginning, not after war. Those who have already taken ECGC policy before war, government is saying that ECGC will pay you 100% of the loss. Now, the premium, we have not increased the premium at all. We are just keeping the premium the same level which was there before the war. Under relief, what the government has introduced, re-importation or the back to town are excluded. So if you have re-imported your consignment, then you are not comes under this relief package as defined by the government. Now, the last one is that component 1 and component 2, which is applicable for a ECGC policy holder. See, what does it say? It simply says that if you are a component 1, then you will get 100% cover. If you are under component 2, which means you have just taken a policy, then also you will get a 95% of the loss. So component 1 policy holder will get 100%. Component 2 who have just now taken or will take a new ECGC policy, they will get a 95% cover. And the third one, which has not taken any ECGC policy, and right now also they have not taken any or they are not planning to take, that comes under the component 3. अमित जी, Yes. एक रिक्वेस्ट है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में करें, हैं, Okay. 2021 है?
थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने के लिए। ठीक है ठीक है। थैंक तो यू। सर अभी हम बात करते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि कौन से कवर है जो कंपोनेंट 3 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इस रिलीफ पैकेज में जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है कंपोनेंट 3। क्यों मेजर पैकेज है? क्योंकि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एक्सपोर्टर हु आर अ पॉलिसी होल्डर। क्योंकि अगर आप ईसीजीसी की पॉलिसी ले रखे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट ईसीजीसी इन सारी चीज़ों को कवर करती है। तो बट व्हाट अबाउट द एक्सपोर्टर जिन्होंने ईसीजीसी पॉलिसी नहीं ली थी? तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि जिन्होंने ईसीजीसी पॉलिसी नहीं ली थी उनके लिए हम कुछ कंपनसेशन पैकेज लेके आए, रिलीफ पैकेज लेके आए। तो ये जो कंपोनेंट 3 है ये इसके अंदर वही एप्लीकेबल है जिनके पास ईसीजीसी की कोई पॉलिसी नहीं थी, पहला। दूसरा, वो एमएसएमई के होल्डर हैं, ही मस्ट बी द एमएसएमई सर्टिफिकेट होल्डर। और तीसरा, उनकी बिल ऑफ लेडिंग 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में होनी चाहिए। और डेस्टिनेशन कंट्री, ये जो मैंने 10 कंट्री बोला है, और साथ साथ इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो आप रिलीफ कंपोनेंट 3 के अंदर आ रहे हैं। नाउ आपको क्या क्या मिल सकता है या किस तरह के लॉस इसके अंदर हम आपको कंपनसेट करने वाले हैं? आई थिंक दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो कॉस्ट जो है सर वो एकदम क्लियरली डिफाइन है कि आपके शिपमेंट करने के बाद, ओके, वंस यू हैव मेड द शिपमेंट एंड आफ्टर मेकिंग अ शिपमेंट, if a liner is making a additional charges or the insurance is charging you another amount due to war risk or emergency risk or whatever, so any incidental charges or the additional invoices raised by the liner or the insurance company and you have paid that amount, that is your loss, and that loss is covered under the component 3. सो आई थिंक इट इज़ वेरी रिटेन। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इन सारे कॉस्ट को हम आप एलिजिबल हैं रिम्बर्समेंट के लिए। लेकिन हाँ, जब आप रिम्बर्समेंट के लिए आएंगे तो निश्चित तौर पे वो सारे पेपर प्रूफ आपको देना होगा कि वो एडिशनल इनवॉइसेज है वो कितने का है और आपने जो पेमेंट किया है वो सारा प्रूफिंग आपको देना पड़ेगा। तो कंपोनेंट 3 के अंदर जो है ये देखिए की फीचर्स हैं कि ये कितने अमाउंट तक एप्लीकेबल है, हाउ मच अमाउंट इज एलिजिबल पर एक्सपोर्टर वाइज। सो एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, द ओवरऑल सीलिंग is restricted to the 50 lakhs. So we cannot give one exporter more than 50 lakh rupees on account of these. So even your loss is more than 50 lakhs, we will restrict to the 50 lakhs. That is the one thing. Now, another thing is that if you have suffered a loss, let's see 1 crore loss, and you are filing a compensation under component 3, as per the directives, you are eligible only for the 50% of your loss. So whatever your actual loss is there, government is just bearing a 50% of that loss, not 100% under component 3. So if your loss is, let's say 20 lakhs, you will get 10 lakhs. If your loss is 40 lakhs, you will get 20 lakhs. So this is how it has been designed, and maximum ceiling is 50%. CIF and FOB both are applicable. Now component 1 and 2, I have already said that this 1 and 2 is applicable for the policy holder, and under 1 we can compensate up to 100%. And those who has not taken policy before war, but they have taken policy after war, that exporter is also eligible to get 95% cover or the losses. So this is all about the component 1, 2 and 3. Now the next question will come, how to file a claim with the ECGC under component 3. So you can see that we have set up everything. You can go to the ECGC website and you can register yourself. There is a sign up method. It is an auto generated thing.
So any exporter who want to register or file a claim under component 3, go to ECGC website. There is a link on the website. You register yourself using IC code and email ID and mobile number. You generate your ID and password, and then you upload the documents. The document is also listed there. YouTube tutorial is also available where you can see if you need any help. These are the documents that is required by under the component 3. So please see this document, because if you will not upload the documents, these are the mandatory documents, ECGC will not be able to process your claim suitably. So MSME certificate, this purchase order, invoice, onboard bill of lading, the extra invoices showing this extra amount, and if the buyer has deducted your amount on account of this extraordinary charges, then whatever the invoices the buyer will produce, that also we need it, and the bank realization certificate for the export proceeds. So these are the documents which you require. So keep this document in handy. Go to ECGC website, register yourself, and upload the document. We have set our terms for 30 days TAT, that once you will submit the claim to ECGC with all documents, we are trying our level best to process within 30 days and pay the claim. These are the email ID. If at all you face any problem, you can shoot a mail or you can write down also, and you will get an immediate reply from the ECGC IT team as well as the relief team. We have made a special relief team at the head office. So anytime if you shoot a mail, any problem if you are facing, they will give you the reply. So I think this is all about the relief. So thank you, sir. And anything which you want to ask, you are most welcome, sir. Thank you, Abhijit. Thank you very much. Now the floor is open for any questions which is related to the scheme. And if you have any other query regarding claims with ECGC or any scheme that you may want to understand about, so Mr. Kumar is there with us. So the floor is open. You can go ahead, raise your question, raise your hand, and cover. हेलो आप पूछिए। सर, आप एक वो पहले वाली स्लाइड दिखाएंगे जिसपे अपने क्लेम में जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है। हाँ, एक मिनट 1 मिनट सर। इससे पहले वाला। हाँ बताइए सर। सर इसमें एमएसएमई सर्टिफिकेट इज ओके, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, शिपिंग बिल ऑफ लेडिंग, ये सब तो ठीक है। नाउ द आपका जो पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इनवॉइस क्लियरली शोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरचार्ज एलिमेंट। जी सर। सर इसमें ट्रांसपोर्ट में कुछ केसेस में शिपिंग लाइन थ्रू रेट बिल करती है इंक्लूडिंग वॉरिंग सरचार्ज, बाइफिक्रेट नहीं करती। उसके साथ वो एक नोटिस भेज देती है कि इतने का सरचार्ज लगा है। सर विल इट आपको बी एक्सेप्टेबल? सर इसमें ऐसा है कि पहली बात तो ये है सर कि ये शिपमेंट करने के बाद ड्यूरिंग द हाई सी में लगाया गया है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। यस सर, यस सर। पहले है वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा कि अगर लाइनर ने आपको एक कंबाइंड अमाउंट दे रखा है, ठीक है, उसमें ये लिख रहे हैं इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस, कोई दिक्कत नहीं है सर। लाइनर को एक मेल कीजिए कि भाई मुझे इसका बाइफरकेशन करके दीजिए कि एक्स्ट्रा चार्जेस आपने क्या लगाया है, कितना अमाउंट इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में है, ये आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज जो जो हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट के बाद फिर हमें दीजिए, वी विल entertain it sir. Liner will support you sir, that no problem at all. नहीं लाइन तो सपोर्ट करेगी सर,
बट द थिंग इज दैट कि क्या सिंगल इनवॉइस शोइंग ओशन फ्रेट कंपोनेंट बिलिंग हेड उसमें ऑल इन रेट चार्ज किया है और उसके साथ मैं मेल की सपोर्टिंग लगा देता हूँ कि ये सरचार्ज इसमें फ्रेट में इंक्लूड है, वो एक्सेप्टेबल है, नंबर वन। सर अगर आप डॉक्यूमेंट्री कोई भी पेपर दे रहे हैं जहां ये स्टैब्लिश होता है कि वॉर इमरजेंसी के एलिमेंट अमाउंट चार्ज किया गया है, डेफिनेटली अच्छा, और सर ये जो और एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपने मेंशन किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद बायर फॉर डिडक्शन, जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरी शिपमेंट की टर्म C&F है, जी सर। सो फ्रेट हैज नथिंग टू डू विद बायर। राइट मैंने सर, उसको एक रेट बेचा, उसने मुझसे परचेज किया, फ्रेट इज माय रिस्पांसिबिलिटी अप टिल हिज डेस्टिनेशन ये पोर्ट। लिखा हुआ है, ये एप्लीकेबल है एफओबी टर्म्स ऑफ पेमेंट के लिए। ओके। ठीक है, जहां पे और एफओबी है और बायर हम्म, आपको $1 लाख की जगह 90,000 $90,000 दे, गॉट इट सर, समझ गया। वहां अच्छा पे हम दूसरा बोल सर, रहे हैं आप देने के लिए ताकि हम वो भी कंपनसेट कर पाए। ठीक है। अच्छा सर एक चीज और लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं FOB के केस में, राइट? बिल्कुल सर, क्योंकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद ही है ना, क्योंकि एफओबी है, जब तक हाँ, बायर डिलीवरी नहीं ले रहा है हाँ, आपको पता चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट जब तक बायर आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, यू विल नेवर करेक्ट। नो कि बायर उसको काट के देगा एक्स्ट्रा या पूरा का पूरा पैसा देगा। ठीक है। तो ओके। इन ऑर्डर टू असेस द लॉस कि आपका लॉस हम्म, एग्जैक्ट कितना हुआ, हम्म, मूवी के केस में अगर आपको ये वेट करना पड़ेगा कि बायर पूरा पैसा दे रहा है या कुछ काट के दे रहा है। राइट। ठीक क्योंकि है। अगर उसने डिडक्शन किया, हम्म, जो डिडक्टेड अमाउंट है, यू कैन कम, यू कैन, है ना, क्लेम विद अस, अगर आपका ये बीएल डेट उसमें फॉल कर रहा है तो। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी काफी लंबा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है मैं सर, आपको ताकि मैं exposure आपको अपनी अपनी ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ डिटेल दे रहा हूँ, उसमें क्या ये कॉस्ट कवर होगी मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा। मेरी शिपमेंट इंडिया से नॉर्वोसिक के लिए बुक हुई थी, रशिया के लिए, ठीक है, बट उसका रूटिंग था वाया जेबल अली, जेबल अली से ट्रांसशिपमेंट होके वो रशिया जानी थी। ठीक है। 27 को शिपमेंट सेल हुई है, 28 को वार स्टार्ट हुआ है और 4 अप्रैल को लाइन ने नोटिस भेजा डब्ल्यू वॉरिस सरचार्ज का, और मेरी शिपमेंट ऑफलोड हुई कोरफकान में इंस्टेड ऑफ जेबल अली, बिकॉज वो पोर्ट बंद हो गया था। ठीक है। अब कोरफकान से जेबल अली बाय रोड लाइन ने मुझे चार्ज किया अराउंड 3000 AED, जी सर। नंबर वन। और फिर अब मेरे को वो नॉर्वोसिक शिपमेंट भेजने के लिए कोरफकान से सोहर तक का जो फ्रेट है अराउंड 3500, वो भी मुझसे ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम WRS सरचार्ज। तो सोहर वाला फ्रेट कंपोनेंट और जो लोकल कोरफकान से वहां, वो भी कवर्ड है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कवर होगा सर। ओके। क्योंकि सर देखिए, आपने जो बोला ना, ये क्या है हम्म, कि आपका पहले से ये जो रूट था इसमें इन ट्रांजिट रूट में ये 10 कंट्री के अंदर आ रहा है आपका। ठीक है। करेक्ट, आपका करेक्ट। डेस्टिनेशन कंट्री नहीं है, बट इन हम्म, ट्रांजिट में आ रहा है, तो दैट इज वो क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। दूसरा हम्म, ये है कि ये जितने भी चेंजेज हुए और ये जो नए रूट को लिया गया, लैंड रूट को लिया गया, ये आपका प्लान रूट नहीं था। राइट। करेक्ट, ये लैंड लाइनर ने आपको बोला करने के लिए, बिकॉज देर इज नो ऑप्शन। करेक्ट। सो लाइनर ने एक नया क्या कहते हैं वे आपको दिखाया, नया रास्ता दिखाया, और जिसके कुछ हम्म, चार्जेज हुए हैं, जिसके लिए आपके पास सपोर्टिंग पेपर होगा। राइट। करेक्ट। तो बस दैट्स इट, यू हैव टू प्रोवाइड द सपोर्टिंग पेपर कि हम्म, जो लाइनर के बीच का कॉरस्पॉन्डेंस है, प्लस उसका हम्म, इनवॉइसेज करना और आपका हम्म। पेमेंट करना लाइनर को। ये इट इज एलिजिबल सर, यू कैन डेफिनेटली क्लेम विद ईसीजी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसमें सर मैं मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एक्सपोर्टर, मैं बस इसमें एक एक चीज ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि यहाँ आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट लेके आई है वो लिमिटेड टू दीज 12 कंट्रीज, जो 12 कंट्रीज है ना, केवल उसी कंट्रीज में इन ट्रांजिट अगर है या डेस्टिनेशन है, और फिर आपका अगर लॉस हुआ है तो सरकार बोल रही है मैं 50% तक दूंगा। ठीक है। लेकिन जो कंपोनेंट 2 है वो ये कहता है कि अगर आपने आज तक ईसीजीसी पॉलिसी नहीं लिया हुआ था, कोई बात नहीं, अगर आप आज भी पॉलिसी लेते हैं तो
तो ईसीजीसी की पॉलिसी में केवल ये 12 कंट्री कवर नहीं है, ईसीजीसी की पॉलिसी में वर्ल्ड की सारी कंट्री कवर है। तो अगर हम फ्यूचर रिस्क की बात करें, तो जो लोग अभी तक इंश्योरेंस कवर नहीं लिया है जिन्होंने, उनके लिए एक रीथिंक और रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि वो ये कॉल ले सकें कि मुझे ईसीजीसी पॉलिसी लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप ईसीजीसी पॉलिसी लेते हैं तो ये पॉलिसी लेने से केवल ये 12 कंट्री नहीं, हम ये सारे रिस्क कवर करते हैं पॉलिसी के अंदर। जो ये जो एक्स्ट्रा रिस्क है, वॉर रिस्क है, इन ट्रांजिट रिस्क है, ये एडिशनल चार्जेज है, दैट ऑल कवर अंडर द ईसीजीसी पॉलिसी। बट ईसीजीसी पॉलिसी में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये केवल ये 12 कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज, सारे बायर और सारे टर्म्स ऑफ पेमेंट कवर है। सो फ्यूचर की हम बात करें तो द बेस्ट वे टू नो रिड्यूस योर रिस्क इज दैट यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट टेकिंग अ ईसीजीसी पॉलिसी वेयर यू विल गेट अ 95% ऑफ योर लॉस। प्लीज सर। Thank you. Now we have Mr. Sunil Pandey. आप पांडे साहब बताइए अपना क्वेश्चन। सर मेरे पास ईसीजी, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर मेरे पास ईसीजीसी की फुल कवरेज पॉलिसी, मतलब ऑल शिप कवर्ड है। जी सर। मेरी शिपमेंट यूएसए या जो है यूरोप जाती है। अगर ये ट्रांजिट रूट के अलावा इन 12 ट्रांजिट रूट पे ही वार सरचार्ज दे रहे हैं या और, क्योंकि सभी ने ज्यादातर शिपिंग लाइन ने फेयर बढ़ा दिए हैं। सर अगर आप ईसीजीसी के पॉलिसी होल्डर हैं, ठीक है, पहले से और से पहले से, और आपको जी जी। लाइनर ने एडिशनल इनवॉइस रेज किया है वॉर के नाम पे, भले ही ये 12 कंट्री का ट्रांजिट नहीं हो, ठीक है, जी जी। ईसीजीसी पॉलिसी में ये कवर है सर, ठीक है। ठीक, तो मैं स्टार पॉलिसी होल्डर है सर केएसपीआईएन से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, दैट इज द बेनिफिट ऑफ ईसीजीसी पॉलिसी। हम्म। आज तो गवर्नमेंट जो लेके आई है वो तो लिमिटेड विंडो के लिए आई है ना, तो ये जी जी अगर आपका बीएल उसमें फॉल कर रहा है तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल भी। जी 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 सर। आप क्योंकि पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए ना ही ये विंडो एप्लीकेबल है ना ही ये कंट्री एप्लीकेबल है। जी आप जी। पॉलिसी के पीरियड के अंदर कोई भी शिपमेंट गया हो, किसी कंट्री को गया हो, और अगर आपको लाइनर ने ये वॉर रिस्क के नाम पे एडिशनल चार्जेस किया है, यू कैन क्लेम विद अस एंड यू विल डेफिनेटली गेट द, आई थिंक आपके पॉलिसी में 90% कवर होगा, यू विल गेट दैट 90% सर। कितना कवरेज दे रहे हैं सर अदर्स वाले, या यही है 50%? नहीं सर, वो कंपोनेंट 3 में जो लोग पॉलिसी होल्डर नहीं हैं उनके लिए 50% हम दे रहे हैं। और हमारे लिए 100%? आपके लिए, अगर आपके लिए 100% है तब, अगर आपका बीएल उस डेट में फॉल कर रहा है तो, नहीं तो 90%। ठीक है सर। एनीवे हम आपको 90% तो दे ही रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई anyone else who has a question? Mr. Ploy Ghosh. Mr. Ploy Ghosh, you have a question? Ghosh साहब पूछिए अपना क्वेश्चन। Mr. Ghosh, आप पूछिए अपना क्वेश्चन, आप पूछना चाह रहे थे। Mr. Ghosh. Anyone else? कोई भी प्रश्न किसी के पास हो इस पॉलिसी को लेकर, इस रिलीफ स्कीम को लेकर, you can ask the expert now, or else you have any question other than the relief scheme, you can also ask him. चैट में देखिए अमित जी एक क्वेश्चन लिखा है,
जी जी सर, एक मिनट में देख लेता हूँ। उसने अच्छा, ये पल्लव घोषाल ने लिखा है कि few of our European buyer received shortage of goods. We are not a ECGC member in this case. Buyer claims credit note from us, and as a result, we receive short amount against that. Kindly advise ECGC cover this type of short payment transaction. Shortage of goods. सर आप यहाँ लिख रहे हैं, घोषाल लिख रहे हैं कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इनके क्वेश्चन को, कि जो उन्होंने गुड्स भेजा वो 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 शॉर्टेज है। सी तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप एक कंटेनर भेज रहे हैं और जो भी क्वांटिटी है वो तो फुल क्वांटिटी में जाएगी वहां। अगर क्वांटिटी का मिसमैच है तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेशन हो गया जो आपके और इंपोर्टर के बीच में है। तो यहाँ पे तो अगर क्वेश्चन यही है तो आई थिंक नोबडी कैन डू एनीथिंग एट ऑल, बिकॉज इट इज द एक्सपोर्टर ड्यूटी टू ओबे द कॉन्ट्रैक्ट। लॉयर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप लिख रहे हैं चैट में, मेरा आपसे निवेदन है कि डायरेक्ट पूछ लीजिए। चैट में लिखने के आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। लॉयर घोष। गुड्स टेकन बाय कस्टमर स्टोलन। ओके। अच्छा, गो सर लिख रहे हैं कि जो उनका गुड्स है ना वो कस्टम से चोरी हो गया है। अब इसमें सर जो है ना वो तो फिर मतलब ईसीजीसी के परव्यू में नहीं आएगा, क्योंकि ईसीजीसी का कहना यही है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द एक्सपोर्टर कि जो गुड्स उसने डिमांड किया है मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, दैट गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द बायर। एटलीस्ट जो है ना आपको डिलीवरी तो करनी है, फिर बायर पेमेंट करे या ना करे तो इसी जीती पॉलिसी के अंदर आपको वो कवर मिलेगा। लेकिन जिस बायर को आप डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, 100 आइटम की जगह मान लीजिए 50 आइटम दे रहे हैं, तो अब वो तो 50 आइटम का ही पे करेगा। अब ये 50 आइटम जो है ना, आई थिंक ये आपका मरीन इंश्योरेंस में कवर होगा सर। जो मरीन इंश्योरेंस आपने वेयर हाउस टू वेयर हाउस लिया होगा, इसके अंदर ये इशू जो है वो कवर होता है। एनी लॉस और डैमेज टू द गुड फ्रॉम वेयर हाउस टू वेयर हाउस। ठीक है, थैंक यू। सिमरजीत कौर, मिस कौर, यू हैव अ क्वेश्चन? पूछिए मिस कौर, पूछिए अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरे को ये पूछना है कि हमारा सर बता रहे हैं कि ट्रांजिट इन ट्रांजिट वाली कंट्रीज में नहीं है हमारा, लेकिन ओवरऑल जो मैरिन का कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट है, वो डबल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन इधर से ट्रांजिट नहीं है और हमारे पास पॉलिसी भी नहीं है, तो इस केस में हमें हम एप्लीकेबल हैं इसके लिए या नहीं? एंड रूट इधर से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग है उसकी, लेकिन एक्चुअल में फ्रेट और इंश्योरेंस बढ़े हुए हैं। दैट इज मैम, अभी जो गवर्नमेंट जो लेके आई है उसके अंदर तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो 10 कंट्री और इजिप्ट और जॉर्डन मिला दें तो 12 कंट्री, अगर आपका डेस्टिनेशन या इन ट्रांजिट नहीं है तो आप देखिए, आप चूंकि पॉलिसी होल्डर नहीं है तो आप फ्री में आती हैं, पहली बात, ठीक है। सो यू कैन क्लेम अंडर कंपोनेंट 3। बट जो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं उस डायरेक्टिव्स में एमएसएमई सर्टिफिकेट का होना, बिल ऑफ लेडिंग उसी डेट में फॉल करना, और इन ट्रांजिट या डेस्टिनेशन कंट्री यही 12 कंट्री। तो फिलहाल जो हमें डायरेक्शन मिला है बस इसी रिस्ट्रिक्शन के साथ मिला है, तो हम नहीं वाले में कर पाएंगे, अदरवाइज ये कंपोनेंट 3 में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अगर पॉलिसी लेती हैं तो कम से कम आज के बाद कुछ इस तरह की चीजें आती है, देन डेफिनेटली ईसीजीसी पॉलिसी। ओके सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? एक एसएनएस ओवरसीज से कोई पूछ रहे हैं चैट में। जी सर। जनरल क्वेश्चन है, इसी से कैसे मदद कर सकता है? ईसीजीसी, एक मिनट में देख लेता हूँ सर। आई एम प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट बिजनेस, सो व्हाट इज बेनिफिट ऑफ ईसीजीसी फॉर द न्यू एक्सपोर्टर्स? सर, ईसीजीसी का बेनिफिट अगर हम सिंपल 2 लाइन में बताएं, ठीक है, तो बेनिफिट क्या है वो आप समझिए कि एक बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट करने की सोचता है या नई कंपनी बना रहा है। आप चाहे ना सब कुछ करते हैं, सारा गुड्स प्रिपेयर करते हैं, कहीं से आप ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर आप अपना गुड्स क्रेडिट पे दे रहे हैं, अगर आप एडवांस पे काम नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा आपको एडवांस मिल रहा हो, तब तो कोई बात ही नहीं है।
फिर ईसीजीसी की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में यू हैव टू प्रोवाइड द क्रेडिट। उधार, उधार ही दुनिया का जो बिजनेस जो चल रहा है ना, उधार पे ही चल रहा है। तो जब हम उधार की बात करते हैं तो वो 1 महीने की उधारी हो, 2 महीने की उधारी हो, 3 महीने की उधारी हो, तो आप अगर 10 लाख, इवन 20 लाख का भी अमाउंट अगर आप से कोई बाहर मांगेगा कि मैं 2 महीने बाद दूंगा सामान लेने के बाद, तो निश्चित तौर पे ये किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एक रिस्की बिजनेस है। क्योंकि अगर वो सामान लेने के बाद अगर पैसा नहीं दिया तो एक्सपोर्टर का कंप्लीट लॉस है। तो ये जो लॉस है ना सर, अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो अगर बायर आपको पेमेंट नहीं करता है तो उस लॉस का 90%, 80% या 95% एज पर द ईसीजीसी प्रोडक्ट यू विल गेट द कंपनसेशन। सो नॉन पेमेंट रिस्क को प्रोवाइड करता है। और ईसीजीसी की पॉलिसी लेकर आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आप नई कंट्री में जा सकते हैं, नए बायर के साथ बात कर सकते हैं। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि क्या बायर वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। आपका काम है बायर से नेगोशिएट करना, अच्छे टर्म्स पे नेगोशिएट करना। यू कम बैक टू द ईसीजीसी, हम बायर की अंडरराइटिंग करेंगे, बायर को चेक करेंगे एंड वी विल इशू अ पॉलिसी। तो आपके लिए ये है कि आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस का कवर लीजिए। वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट है। कोई क्रेडिट पे मांग रहा है, डेफिनेटली दीजिए। और कल को के लॉस हो गया, इसी जित विल कंपनसेट यू। सो दिस इज द, आई थिंक, दो पर्पस है, प्रोटेक्शन ऑफ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल एज ग्रोइंग ऑफ योर बिजनेस। ये दोनों काम ईसीजीसी करती है। ईसीजीसी पॉलिसी का बेनिफिट यही है कि आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ नए बायर, नए कंट्री, आपके बिजनेस को बढ़ाने में भी ईसीजीसी का इक्वली जो है ना रोल है सर। अमित जी, वो कंट्रीज एक बार फिर से जरा उस स्लाइड दिखा दीजिए। एक बार चार्ट में लिख रहे हैं कौन से कंट्रीज है, 10 एक बार Okay, स्लाइड में बता, बेनिफिशियरी कंट्रीज। हाँ सर, आई थिंक दिख रहा देखिए इसमें लिखे हुए हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल एंड यमन, और 2 कंट्रीज और बोल रहे थे भी आप, है इजिप्ट एंड जॉर्डन। जॉर्डन। तो 12 कंट्री हो गए। जी, इजिप्ट भी इसमें ऐड कर लीजिए और जॉर्डन भी ऐड कर लीजिए। तो 12 कंट्री हो गए आपके। ठीक है, जी, देख लीजिए। ये कंसीमेंट टेस्टिंग फॉर यानी कि आपका जो गुड्स है इस कंट्री को, मतलब आपका डेस्टिनेशन कंट्री ये कंट्री होना चाहिए, या ये उस कंट्री से होते हुए कहीं और जा रही है, दोनों में एप्लीकेबल है। ट्रांजिट में ही मिलेगा, जैसा आपने पहले में क्लियर किया। अगर वहां से कोई ट्रांजिट कर रहा है उस पीरियड में, जो पीरियड 1 महीने का है, तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। राइट 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 राइट। एनीवन एल्स, और किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछे, रेज योर हैंड, बिकॉज और जो लोग ईसीजीसी की कवर पॉलिसी नहीं लिए हैं, मैं एक जनरल भी आपको बता दूं कि अगर आपका टर्नओवर के लिए आप ईसीजीसी पॉलिसी लेते हैं तो ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग जो है ना, लेस देन 0.5% पे आती है आपके। मतलब मैं कॉस्ट ऑफ ईसीजीसी इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो कभी टर्नओवर ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो 0.4% पे भी आ जाए या 0.3% पे भी आ जाए। सो अब आपके ऊपर कॉल है कि 0.5% ईसीजीसी को का इंश्योरेंस कॉस्ट दे के, if you are able to get the compensation up to 95% or the 90%, so that is the call the exporter should definitely take it, because that will give you peace of mind and it will help you to grow your business. राइट। सो ये हटाओ, अनशेयर कर दिए स्क्रीन को सस्ता, वैसे तो ओके। सो मेरे ख्याल से किसी के पास और कोई प्रश्न नहीं है अगर, तो हम इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं। और आपने अमित कुमार जी की स्लाइड एंड में आपने देखा होगा, लास्ट स्लाइड थी जिसमें उन्होंने ईमेल आईडी भी शेयर किए हुए। मैं चाहूंगा पुनः से एक बार उस पर स्लाइड को शेयर कर दें अमित जी।
जी तो जी if जी anyone has any query स्कीम से रिलेटेड और कोई भी अन्य उसके अलावा भी कोई है तो आप उस ईमेल इन सारी ईमेल आईडीज पे आप लोग इसका फोटो खींच सकते हैं। आप लोग इन सारी ईमेल आईडीज पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और तो अगर किसी पॉलिसी के बारे में कुछ आइडिया लेना है नई पॉलिसी के बारे में, तब आप एक ईमेल आईडी है nro@ecgc.in, उस पे आप मेल दे सकते हैं, ठीक है। nro@ecgc.in, NRO Northern Region Office, nro@ecgc.in मैं लिख भी देता हूँ। पे लिख दीजिए आप। ये ये आपने पे लिख दिया है बड़ा बड़ा। कोई भी इसी से रिलेटेड पॉलिसी रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहें तो दिस इज द ईमेल आईडी वेयर यू कैन राइट योर ईमेल्स। सो थैंक यू अमित जी। ये बड़ा कर दिया आपने, थैंक यू। So thank you, Abhijit, you very much for this insightful session. I hope इस सेशन से लोगों को समझने को मिला होगा। और मैं अपने साथ इतने सारे लोग जो जुड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ आए। इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इसी आप ईमेल करें, EPCH को ईमेल करें, we'll be in touch. So thank you once again for joining us. We'll meet again in the next Exporters Clinic session. Thank you. Thank you, sir. Abhijit. Thank you very much. Thank you. Thanks.